लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी सताकत आश्रम में हूं और यहां पर इंटेक और आईएलओ जापान के कोलैबोरेशन से एक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर है यहाँ पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए जापान से हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये इनसे ही बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मैं चंद्र प्रकाश सिंह, प्रेसिडेंट इंटेक बिहार। इंटेक बिहार। योर नेम? Yeah, my name is Shusuke Oyobe. I'm the project manager for PRS project. What is your purpose for in Patna training for women's? Your by Intech Japan. Okay, so our purpose is to implement a project together with Intac. We are supporting vulnerable workers in the informal economy, especially targeting domestic workers, sanitation workers, and construction workers to have a decent working condition. Self-depend on women's. Yes, like we are really targeting on women because, as you know, in this domestic working area, there are many women are working and they are having a very difficult working condition. So we are supporting them. कि आईएलओ और इंटेक का जो कोलैबोरेशन है, इसका क्या उद्देश्य है बिहार में? क्या कहाँ तक आप लोग सक्सेस हैं? इसका उद्देश्य क्या है महिलाओं के प्रति? देखिए, ये आईएलओ जापान जो पीआरएस फेज़ 2 का एक प्रोजेक्ट है, एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से महिलाओं को हम लोग एक तरह से संगठित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। Which time back to start in बिहार या पटना या इंडिया? Okay, we started this activity in 2021 already, working with Intac Chandra Prakash ji, and we have done many organizing activity. We organized many women workers who are doing domestic working, sanitation working, construction working, to also educate them about their labor rights. पहला काम हम लोगों का ये है उनको मोबिलाइज करना, जिसमें 3 सेक्टर को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। एक डोमेस्टिक वर्कर्स को, एक सैनिटेशन वर्कर्स को और एक पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑल्सो, तो वो निर्माण क्षेत्र को भी। तो इसमें अभी मुख्य रूप से 6 जिला में बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। So how much success ratio by Intech? How much women's success in this by Intech Japan? That's a very good point. Yeah. So we have organized together with Intac more than maybe 7,000 workers together in last 3 years in the state of Bihar, including a majority of the women among the 7,000. And then we are trying to help them access to a social security system such as Ayushman Bharat, Ishram Portal, and a majority of these people we reached out have now integrated into this social security system. वो पटना है, गया है, जहानाबाद है, बांका है, मधेपुरा है, सहरसा है। ये 6 जिला में भी काम चल रहा है। और जैसा कि हमारे आईएलओ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सुसुके ब्रदर सुसुके ने आपको बताया है। Your company is only collaboration in India या other countries? Yeah. So basically, ILO is working for globally. ILO has country offices in all around the world. But I am based in ILO Nepal, and I'm looking after this PRS project, which is sub-regional project. So my project covers Nepal, India, and Pakistan. And for the activity in India, we are pretty much doing in Bihar together with Intac. How are you feeling then after success in Indian women by your projects? Okay. I mean, I think we are still in the middle of success. I mean, we need to actually promote more and more. But I mean, we are also seeing changes gradually, really thanks to the support from Intac and also other stakeholders, including government. Many more women are now understanding their labor rights, also gender equality, occupational safety and health. For example, today we invited our gender specialist from Delhi, and who is a Japanese, Aya Matsura, and she is right now providing a gender equality training for those representatives from 6 districts from Bihar state. So I mean, we are really making a good progress for educating many workers. तो बिहार की महिलाओं के ऊपर कितना असर है और स्टेट के अलावा? और स्टेट के कंपैरिजन में he is asking that after getting this training, how you feel the women of Bihar in comparison to other state women workers? Okay. How they success? I see. Okay. Of course, it will provide much better understanding about gender equality, also about the women empowerment in the employment in their workplaces. And from our project, we are doing basically this activity only for Bihar. And we also think that
other women, like in other states, also needs to get this kind of training. And as ILO Delhi, as ILO India, they are providing this kind of training in many other states. But I think Bihar is one of the first ones that is having this level of training, this much of training. Another state. Yeah, compared to other states. Compared to state and Yeah, other exactly. So I really hope that the gender equality and the women's empowerment in the employment market will be advanced thanks to this training. ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये बेसिकली क्या है ना कि महिलाओं को एक तरह से तो स्किल डेवलपमेंट भी हम लोग करा रहे हैं, और ये जो जेंडर बेस्ड जो एक होता है डिफरेंसेस, भेदभाव जो होता है, और महिलाओं के प्रति जो असमानता का भावना है लोगों में, या लोग समझते हैं कि महिलाएं कैसे ये काम कर लेंगी, या अगर पुरुष और महिला एक जगह कहीं काम कर रहे हो तो ये लगता है कि नहीं महिलाओं की मजदूरी कम होनी चाहिए, ये महिला हैं। तो ऐसे कई तरह की भावनाएं हैं अभी भी समाज में, और महिलाओं को लोग कई काम में समझते हैं कि ये सक्षम नहीं है। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। तो ये अभी हम लोगों ने जिससे 7,000 से ऊपर नियर अबाउट करीब आप समझिए कि हम लोग 10,000 के आसपास लोगों से संपर्क कर चुके हैं। अब उसमें से लोगों को संगठित कर रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं हम लोग कि ई श्रम पोर्टल पर उनको जोड़ रहे हैं, ताकि उनको भविष्य में सरकारी कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। अगर कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में है तो जो BOCW है, बोर्ड है, वह कर्मकार कल्याण बोर्ड है निर्माण श्रमिकों के लिए, उस बोर्ड से उनको जोड़ रहे हैं। और घरेलू कामगार के लिए हम लोगों ने बहुत पहल करके उनके निबंधन का कार्य बिहार में शुरू कराया है, और उसको भी हम लोग अब घरेलू कामगारों को भी जोड़ रहे हैं। तो इससे हो रहा है क्या कि इनको जोड़ने के बाद, निबंधन कराने के बाद, अब इनके बच्चियों को शादी कराना है, या फिर मान लो इनको कोई किसी तरह का बैंक से लोन लेना है, या इनको राशन कार्ड बनाना है, इनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ इनको मिलना है। तो इन सारी चीज़ों को ये ट्रेनिंग के दौरान, ये जागरूकता अभियान के दौरान, या हम लोगों से जोड़ने के दौरान, इन सब लाभों से हम लोग महिलाओं को जोड़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं अंदर में भी प्रशिक्षण का काम चल रहा है, और बाहर में भी आप देखिए कि निबंधन का काम चल रहा है। तो ये एक लगातार चलने वाला ये कार्यक्रम है इस कार्यालय में, जो चलते रहता है। और उसके लिए हम लोगों ने ILO के कोलैबोरेशन से WISC वर्कर्स इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सेंटर का गठन किया है, और उसी सपोर्ट सेंटर के अंतर्गत ये ILO जापान का जो PRS फेज़ 2 है, वो अभी हम लोगों के यहाँ चल रहा है, जिसका कल एक और भी समापन कार्यक्रम है। तो देखिए मुख्य रूप से आप ये देखेंगे तो हम लोगों ने ये पाया है कि बिहार में जिन महिलाओं को हम लोगों को लगता था कि कैसे जुड़ेंगे, अब वही महिलाएं अप्रोच कर रही हैं। रोज़ सुबह से शाम यहाँ आती हैं, हमारा ये काम है, हमारा वो काम है। तो हम लोगों को भी इससे लगा कि महिलाओं को जोड़ने में, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिलाओं को जोड़ने में हम लोगों को सफलता मिली है। और देखिए देश में या बिहार में हम जब तक महिलाओं को जागरूक नहीं करेंगे, उनको समान अधिकार के लिए उनकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, तो जो अभी भी जो समाज में भेदभाव है, जो दूरी है, या जो हम कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, आप जितना भी रिजर्वेशन का बात कर लीजिए, अरे रिजर्वेशन बोलने से क्या है, मुखिया बनती है महिला और पति उसको हैंडल करते हैं। ये ख़त्म करना हम लोग चाहते हैं। महिलाओं को समझना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है, हम हैं और सशक्त हैं, मजबूत हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग इस काम को लेकर के बढ़ रहे हैं। चलिए, इनका कहना है, साफ ये कहना है कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव को शिक्षित करने का काम करती है। इसलिए पूरे भारत में अगर जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो महिला सशक्तिकरण ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। जो ग्राउंड लेवल पर हम आप देख रहे हैं यहाँ सदाकत आश्रम में कि ILO जापान के द्वारा एक वो सेमिनार चलाया जा रहा है, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें इनको सक्सेस मिला है, कई सारे सक्सेस मिले हैं। इनको पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। जो महिलाएं इधर उधर भटक रही हैं, उनको जो स्वरोजगार भी दिया जाता है, उनको स्किल डेवलपमेंट करके उनको स्वरोजगार दिया जा रहा है। तो आपको जापान के द्वारा, ILO जापान के कोलैबोरेशन में सदाकत आश्रम में इंटेक के थ्रू, इंटेक और ILO के कोलैबोरेशन से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं प्रशिक्षित होकर के स्वावलंबी बने और अपने पैर पर खड़ा हो। और महिला सशक्तिकरण की जो बात है, वो सशक्तिकरण यहाँ से परिभाषित होता है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन। में एक बिहार को सपोर्ट मिल रहा है। पूरे भारतवर्ष में केवल ये सशक्तिकरण का काम ट्रेड यूनियन के माध्यम से ILO जापान और इसका जो है, ये केवल बिहार में हो रहा है।
तो ये साफ साफ सुने कि ये बिहार में जो है ना सबसे ज़्यादा बिहार में सफलता मिल रही है और ये बिहार में हो रहा है। और ख़ास करके बिहार वैसे भी पिछड़ा हुआ है, पिछड़े स्टेट में शामिल किया जाता है और पिछड़ा स्टेट तब खत्म होगा जब यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी, सशक्तिकरण में आ जाएगी और स्वावलंबी हो जाएगी, तब जाकर के बिहार का जो पहचान है, एक जो पहचान मिलना चाहिए बिहार को, वो पहचान पे उस पहचान के कदम पर पहुंच जाएगी। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।